आज हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। बहुत ही बर्निंग इशू था लास्ट ईयर का। इसकी सारी प्रोटेस्ट जो इस साल हुई थी बिफोर दिस पेंडेमिक एंटर्ड इंडिया, देयर वर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट्स ऑल ओवर द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू द कंटेंट्स ऑफ द बिल and in fact the act that has come in 2019. We will discuss all the contents, we will discuss all the controversies. We will not go into the question whether the act itself was right or wrong, because obviously that is something nobody is going to judge us on. कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये एक्ट ही सही थी या गलत थी. So before entering into understanding the contents of this act itself, let's understand some of the important issues that are involved. It is called the Citizenship Amendment Act. Now what is a citizen? तो सिटीजन्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो एक कंट्री में, जिस कंट्री के सिटीजन्स होते हैं उस कंट्री के सारे फंडामेंटल राइट्स उन्हें मिलते हैं. नाउ व्हाट इज एन अमेंडमेंट? इट इज कॉल्ड सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. अमेंडमेंट इज एनी ऑल्टरेशन दैट इज मेड टू एनी एक्ट और एनी लॉ. अगर सरकार को ऐसा लगे कि जरूरत है कि कुछ लॉ में चेंजेस लाने की एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट, देन दे कैन डेफिनेटली ब्रिंग एन अमेंडमेंट टू एन एक्ट. And the new amendment, if it is passed by both the houses, which is the Lok Sabha and the Rajya Sabha, then it becomes an act in itself. Okay, so that is what Citizenship Amendment Act is all about. So Citizenship Amendment Act basically amends an already existing act called the Citizenship Act of 1955. So Citizenship Amendment Act 55 क्या करता था? वो हमें बताता था कि कौन सी टाइप की सिटीजनशिप हो सकती है, किस तरह से हमें सिटीजनशिप मिल सकती है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो बेसिकली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप्स दैट इज जनरली गिवन अंडर द सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955. फर्स्ट वन इज सिटीजनशिप बाय बर्थ. सो बाय द वर्च्यू ऑफ मी गेटिंग born in this country, I am a citizen of India. Second is citizenship by descent. So अगर मेरे कोई भी पेरेंट इंडियन सिटीजन है, then I become a citizen of India. Okay, there is third type called the citizenship by registration. By registration क्या होता है? For example, you are citizen of some other country and you want Indian citizenship. तो you can become an Indian citizen by registering in India. उसके लिए कुछ conditions होती है that you should not be a citizen of any other country and so on. So this is basically the third type of citizenship that is provided under the 1955 Act. Fourth one is citizenship by incorporation of a territory. So basically मान लीजिए India goes to a war with a particular country and India wins in that war. Then जो territory हम occupy करेंगे इस war को जीतने के बाद, उसमें भी definitely कुछ लोग रह रहे होंगे. So the people who are staying there will become Indian citizens. And the last type is citizenship by naturalization. So naturalization basically, earlier it was, the time limit was used to be 12 years. Now it is 5 years. So if a person has stayed in India for a time period of 5 years, then he is entitled to become Indian citizens. Citizenship by naturalization और भी एक तरह से मिलती है. For example, अगर किसी इंसान ने किसी फील्ड में, for example the field of science, commerce, sports, काफी अच्छा किया है, then that person is entitled to get citizenship by naturalization, and he is entitled to get as per the rules which is made by the government. Now let's get into the discussion as to what is Citizenship Amendment Act. So पहली बार जब ये वाली जो बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट है 2014 में आई थी, तो 2016 में उन्होंने ये बिल टेबल किया था. लोकसभा से वो बिल पास हो गया था, बट राज्यसभा से नहीं हो पाया था. ये बिल फिर से आया 2019 में, और इस बार राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो गया. सो ऑन 12th December 2019 इट बिकेम फ्रॉम अ सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल टू अ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑन 12th December 2019. नाउ व्हाट डज इट से? सो बेसिकली इट पॉइंट्स आउट 3 कंट्रीज. वो 3 कंट्रीज कौन सी है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश. तो ये कहता है कि इन 3 कंट्रीज से एक कट ऑफ डेट दे रखी है विच इज 31st December 2014. तो इन 3 कंट्री से 31st December 2014 से पहले जो लोग भी इंडिया आए हैं उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाएगी. बेसिकली वो इंडिया कैसे आए? दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स. इलीगल इमिग्रेंट्स क्या होता है? सो इलीगल इमिग्रेंट्स 2 टाइप के होते हैं. एक तो वो लोग होते हैं जो इंडिया आ गए बिना पासपोर्ट के, बिना वीजा के और अदर डॉक्यूमेंट जो उनके पास नहीं है, वो इंडिया में घुस गए इंडिया की बाउंड्री में. दूसरे वो लोग इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं जो कि इंडिया आ गए विद अ वैलिड पासपोर्ट, विद ऑल द वैलिड डॉक्यूमेंट्स, वीजा एंड सो ऑन, बट दे स्टे इन इंडिया आफ्टर वन और ऑल ऑफ दीज
documents have expired, ठीक है, मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, मेरा वीजा एक्सपायर हो गया, एंड इफ आई एम नॉट अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एंड आई कीप ऑन स्टेइंग इन दिस कंट्री, देन आई एम एन इलीगल इमिग्रेंट. तो ऐसे लोगों के साथ जनरली क्या करते हैं, उनको या तो जेल हो जाती है या फिर दे आर डिपोर्टेड बैक टू देयर ओन कंट्री, उनको वापस भेज दिया जाता है उनकी कंट्री में. Now, these people who have come without passport or other documents through here and there through boundaries of India, they entered India. Now, these people are illegal immigrants. So basically, Citizenship Amendment Act provides them citizenship. वही लोग जो 31st December 2014 से पहले आए हैं. Now, यहाँ पे भी एक catch है. The act says that only non-Muslims who have entered India before this cutoff date will get citizenship. और बेसिकली नॉन मुस्लिम्स हु हैव कम फ्रॉम दीज 3 कंट्रीज. सो ये बहुत बड़ा एक कंट्रोवर्सी का पॉइंट था. तो नॉन मुस्लिम्स मींस ऑल द हिंदूज, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, ऑल द जैन्स, सिख्स एंड अदर रिलीजन्स other than Muslim who have come to India from these 3 countries will get Indian citizenship. So one of the most controversial issue was as to why are Muslims being excluded and what is the rationale behind choosing just 3 countries. So there are 7 countries that are around India जो हमारे neighbors हैं. What is the rationale of choosing just 3 countries? To this the Home Minister said that these are the countries जहाँ पे बहुत ज़्यादा violation हुआ है बाकी non-Muslims के rights का. These are primarily Islamic countries जहाँ पे बहुत ज्यादा वायलेशन हुआ है. सो वी और इन वायलेशन से बचने के लिए वो लोग इंडिया आ गए थे भागकर. सो वी विल नाउ कीप ऑल दीज पीपल एज आवर सिटीजन्स एंड वी विल मेक श्योर दैट दे बिकम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. ऑल राइट, नाउ we move to another really important issue, and we saw that there were widespread protests in India, in Delhi, in Rajasthan, in various other states, and there was another issue that was burning up in Assam at that time with respect to the Citizenship Amendment Act itself. So Assam में जो issue जिसकी वजह से वहां पे protest हो रही थी वो एकदम अलग issue था. वो क्या issue था कि in 1971 something really historical happened. East Pakistan in 1971 was liberated and Bangladesh came into being. 1971 में बांग्लादेश बन गया था. तो बांग्लादेश बनने के बाद क्या हुआ, वहां पे काफी ज्यादा अनरेस्ट हो गया और उससे पहले भी थोड़ा अनरेस्ट था वहां पे. सो बांग्लादेश से और ईस्ट पाकिस्तान जो 1971 से पहले था वहां से बहुत सारे लोग भाग के असम की तरफ आने लग गए. इंडिया का बॉर्डर अंदर घुसने लग गए और दे केम टू इंडिया एंड इवन आफ्टर इट बिकेम बांग्लादेश. So the Assamese people said that these people are coming to our country and these are not Indians and basically these are not Assamese, तो ये हमारा culture, language सब खराब करेंगे. तो 1985 में बहुत एक crucial thing हुई थी. There was something called Assam Accord that was signed in 1985. तो Assam Accord ने क्या किया था, उसमें भी एक cut off date थी which was 25th March 1971. तो 25th March 1971 डेट रखी गई थी इसीलिए. तो इसमें कहा गया था कि जो भी लोग ईस्ट पाकिस्तान या उस टाइम बांग्लादेश नहीं था, ईस्ट पाकिस्तान से ही इंडिया में एंटर हुए हैं, असम में एंटर हुए हैं, तो असम बेसिकली इंडिया विल प्रोवाइड देम सिटीजनशिप. जो लोग 1971 25 मार्च 1971 से पहले असम में एंटर हुए हैं और उसके बाद जो भी लोग एंटर हुए हैं उनको सिटीजनशिप नहीं प्रोवाइड की जाएगी. दे विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल इमिग्रेंट्स एंड इट वाज अग्रीड. नाउ इन 1986 A national registry of citizens in Assam was implemented, जिसमें जो भी लोग citizens हैं इंडिया के और असम में रहते हैं उन लोगों का नाम नोट किया जाएगा और बेसिकली उन लोगों को सिटीजनशिप दे दी जाएगी. नाउ व्हाट हैपेंड इज, जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया 2019 में तो उसने कट ऑफ डेट विच इज 31st December 2014 ऑल ओवर इंडिया के लिए कर दी. कुछ एक्सेप्शन है जहां पे ये एप्लीकेबल नहीं है बट असम में डेफिनेटली ये एप्लीकेबल है. तो बहुत सारे एरियाज के लिए कर दी. जो 1971 वाली कट ऑफ डेट थी असम अकॉर्ड के अकॉर्डिंग वो अब नहीं रही, वो भी 2014 में आ गई है विच इज 31st December 2014. तो प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि जो लोग भी 1971 के बाद भी असम में आए थे और जो अभी तक आते रहे थे 2014 तक, उन सब लोगों को भी सिटीजनशिप मिल जाएगी. सो दिस वाज द मेन इशू एज टू व्हाई देयर वर वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट इन असम आल्सो. नाउ लेट्स डिस्कस की कौन से एरियाज हैं जो सीएए के अंडर एग्जेम्प्टेड हैं. सो बेसिकली ऑल द ट्राइबल एरियाज ऑफ त्रिपुरा, असम, मिजोरम एंड मेघालय, दे आर बेसिकली नॉट अ पार्ट ऑफ द सीएए. सो बेसिकली यू मस्ट बी आस्किंग कि अभी असम में इतनी प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे जब सीएए से वो एग्जेम्प्टेड ही हैं.
So these are certain areas which are tribal areas. So government क्या करती है, कुछ areas को as tribal area mark कर देती है कई states में. सिर्फ आसाम का ट्राइबल एरियाज ही exempted है, बाकी पूरा आसाम exempted नहीं है इससे. That is why there are widespread protests. Also there was this regulation from 1873 called the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873. So basically जो भी areas इस रेगुलेशन के अंडर आते हैं वो सारे एरियाज भी एग्जेम्प्टेड है, सीए उन पे एप्लीकेबल नहीं होगा. सो बेसिकली असम में अभी रिसेंटली एनआरसी जब लास्ट रिपोर्ट आई थी, दैट वाज इन अगस्त 2019, उसमें ऐसा बताया गया कि देर आर अराउंड 33 मिलियन पीपल स्टेइंग इन असम एट दिस पॉइंट इन टाइम, और उसमें सिर्फ 31 मिलियन लोग ही थे उसमें. सो बेसिकली 20 lakhs, around 20 lakhs people were omitted from that list. So that was also a point of concern for the Assamese people. And also Mr. Amit Shah, who is our Home Minister, he has also said that by 2024 we will have a nationwide NRC, which is National Registry of Citizens, जो कि असम में बेसिकली हुआ था, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल होगा. उस तरीके से इंडिया का भी एक रजिस्टर बनेगा. Okay, and now we'll discuss some of the most important questions that are actually expected in your paper this year, and this is one of the most important issues. It has not been asked in any of the sample papers so far, so make sure that you understand these questions and try to look more as to what other questions can be asked from these questions. So if you find our videos helpful, please subscribe to our channel and press the bell icon so that you don't miss any updates from us. Thank you.